And then from there, you can develop the implementation and the pseudocode for these different types of data structures. Okay, so I hope the slides are also visible. Okay, so just to start with, stack, we have discussed this in detail. So stack is primarily uh, last in, first out sort of implementation of data storage, where you push an element onto a stack and then you can pop that element out. The way you implement, so you can actually look at this uh, as a bucket that actually stores various elements at various memory locations. There are various ways in which stacks could be implemented. Now, the basic concept of implementing a stack could be seen in the form of an array also. For example, here on this particular slide, you can see that you have an empty stack with 4 elements or 4 spaces, and we introduce an element or a variable which is called, or a pointer variable. It could be a simple variable representing the index of an array, or the pointer variable. We'll also discuss that later on. So you start with a value of -1. That would mean that the stack is empty, and then if you push one element, then the value of top, which is representing the top of the stack, it goes to index 0, and if you insert the second element, the value in the top goes to 1, and so on. The value could go up to 3 if it has a 4 element representation of a stack, and then you can pop out these elements. So if you pop out 33 from here, you reduce 1 from top shifts to 12, which is index 2, and then it starts reducing. So when you are pushing elements, the value of top increases, and it could go maximum up to the size of the stack, and then the last index that the stack would contain, and then the value starts reducing if you are starting to pop out the elements. Um so this is what a simple implementation concept of a stack would look like. Okay, and I think we discussed the implementation of a stack also last time. So the next few slides are primarily giving you an implementation of a stack class, and this implementation of a stack class is done through um, an array. Okay, so an array implementation of a stack is actually shown here. Okay, you can also implement a stack using linked lists. Okay, so we discussed linked lists earlier, and so in case of a linked list, if you remember, we have the class of a linked list generates a node that contains the data element or the data member, as well as pointed to the next node. So you can also use the concept of a linked list to implement a stack. Okay, and this is how you can actually do that. So for example, in this particular case, if you are using a linked list, then you'll have to primarily use the same concept as discussed earlier. For example, here you can see that I'll just
go to the full screen. Here you can see that your node primarily consists of say the data member, which is say the value that is stored, and then the next data member contains the address to the next node. Okay, so the address to the next node is present here. Top would always point to the head of the linked list, and that would mean that the last element that has been, or the last node that has been entered. And then, and of course, if you are using a heap for storage or dynamic memory allocation, then you'll also have to introduce a pointer that points to that first element. So head would primarily contain the address of the top of the stack in this particular case in order to start. So a linked list can also be used in order to implement the stack, right? The last element, that is, I mean, the element that was entered right at the first instance, that would have obviously a null pointer. And that would primarily mean that there isn't any other element or any other node that is associated with this particular node. Okay. So this is how a simple representation of stack could actually be seen using a linked list implementation. Right. Any questions on this so far? Okay. If there aren't any questions, then we can move on to the next uh, thing, which is primarily, so this is the implementation of the stack. I think we have already seen that last time. So you primarily have um, in the class implementation of a stack, where you have to primarily define these two data members, and then these are the functions. So the first one would primarily be representing generating a new node, then pushing the elements on onto the stack, pop the element, and then uh, there is another function that you can introduce, which is called peek function, right? So this would primarily uh, be representing, this peeks into the stack and gives you the element, the present data that is present at the top. Okay, so it actually prints or returns that. In case if it is um empty, then it would return -1. Otherwise, if there is an element that is present to which this top is pointing to, that particular element or data is actually uh, returned in this particular case. So you can also add this function, which is called the peek function. Okay, so now the next thing that we discussed also in our earlier discussion were queues. So in case of queues, primarily it's first in, first out. So you enter the elements in a way from one end of a queue, and then the elements are actually taken out of the queue from the other end. Okay, the end from where the elements are taken out, that is called the front end. Okay, or you can call it the head end. The element from where the elements are pushed into the queue or entered into the queue, that is the rear end or the back end of the queue. So enqueue is the function that adds elements onto the queue, and dequeue is the function that actually
takes out the element from the queue. So this is what this simple function would look like. Okay, so here in this particular case, say for example, if your queue is empty, and so if for example your queue is empty in this particular this scenario, there isn't anything which is present on your queue, then the you can actually, so let's say that there are four places or storage places that are present here. In this particular case, R could represent your rear end and F could represent your front end of the queue. You can initialize this with a value of -1. Okay, so the value of -1 is initialized here. So as soon as you enqueue, that means you add an element onto that queue. So let's say you add 5 here. So, and this is at index 0. Okay. So what would happen to the values of R and F? G. Anyone? So how would the values of R and F increment or change? सर R तो 0 हो जाएगा, जी जी, और क्योंकि हम सिंगल क्यू ले रहे हैं तो शायद F ऐसा का वैसे रहेगा शायद, यानी F भी 0 हो जाएगा. F भी 0 हो जाएगा. तो both of them will become 0. So I'll just write down these values here. So R will be 0 and F will also be 0. ठीक है. So R की value, क्योंकि there is only a single element that is present here. ठीक है. अच्छा, as soon as you enqueue, I mean add another element onto the queue. For example, if you add another element onto the queue, then okay, it's, so I'll just say let's say write it here. So if this was, let's say 5, if you add another element here, okay, and let's say this element is 2. Okay, and initially when you started, your R and F value were -1 and -1. So now this is your rear end and this becomes your front. Okay, so in this particular case, how would the counter for R and F work? So what would happen to R and what would happen to F in this case? सर 1-1 हो जाएंगे. अगर 1-1 होते हैं तो that means both of them will be pointing to the same location. ठीक है, तो फर्ज करें कि यहाँ पे आपने एक एलिमेंट ऐड कर दिया 2. ठीक, लेट्स से आपने एक एलिमेंट 2 ऐड कर दिया इस पर्टिकुलर केस के अंदर. ठीक है, तो दोनों 1-1 सेम लोकेशन को तो पॉइंट आउट नहीं करते ना, क्योंकि रेयर एंड जो है, अगर फर्ज करें 10 एलिमेंट्स आपने इस क्यू के ऊपर ऐड किए, तो रेयर जो होगा वो हमेशा बैक एंड को रिप्रेजेंट करेगा. दैट मीन्स कि जहां से आप, अच्छा, हाँ, ठीक है ना, और फ्रंट जो है वो हमेशा वो एंड शो करेगा जहां से आप एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं. ठीक है, सो देयर आर 2 वेज इन विच यू कैन एक्चुअली लुक एट दिस प्रॉब्लम. ठीक है, और वो आप ये कर सकते हैं, आई मीन देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज हियर. आप ये कर सकते हैं कि आप जो इंडेक्स है, इंडेक्स जो है वो आप इस डायरेक्शन में इंक्रीज करें. ठीक है, अगर आप इंडेक्स इस डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं तो फ्रंट के ऊपर हमेशा 0 इंडेक्स रहेगा. ठीक है,
आई मीन दैट्स वन पॉसिबिलिटी कि जो फ्रंट पे है ठीक है सर। वहां पे जीरो इंडेक्स रहे और आर जो है वो इंक्रीज होता जाए। इट रियली डजेंट मैटर कि वो लेफ्ट साइड पे इंक्रीज हो रहा है या राइट साइड पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इट माइट बी पॉसिबल कि अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो दिस इंडेक्स कुड बी जीरो, दिस इंडेक्स कुड बी वन, this could be 3 2, this could be 3 and this could be 4, ठीक है। सो इफ आई ऐड अ सेकेंड एलिमेंट तो आपका फ्रंट जो है लेट्स से फ्रंट के ऊपर आपके आई मीन 5 जो है दैट इज 5 जो है दैट इज ऑलवेज एट द फ्रंट। सो आई कैन अज्यूम इट इन दिस वे कि 5 यहाँ पे आ गया, ठीक है। एंड दैट मीन्स कि मैं फ्रंट को हमेशा इंडेक्स जीरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो फ्रंट वुड ऑलवेज बी एट इंडेक्स जीरो। लेट्स अज्यूम दैट कि मैं उसको लोअर साइड पे रखना चाहता हूँ। देन एज सुन एज आई पुश और एनक्यू द सेकेंड एलिमेंट 2 तो आर इंक्रीजेज बाय 1, ठीक है। सो दैट इज लाइक वन वे ऑफ लुकिंग एट दिस। The other way of looking at this would be the other way around. मैं इसको दूसरी तरीके से भी कर सकता हूँ। And the other way around is कि मैं रेयर को जीरो के ऊपर फिक्स करता हूँ, ठीक है। सो मैं ये आई मीन दैट वुड बी अनदर वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग क्यू। तो इन दैट केस मेरे पास जो फ्रंट है दैट वुड हैव द लेटेस्ट इंडेक्स और जो मेरे पास रेयर है दैट वुड ऑलवेज हैव अ वैल्यू ऑफ जीरो, ठीक है। सो इट्स सिंपली अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि मैं किस तरीके से उसको मैं देख रहा हूँ। लेकिन द कन्वेंशन इज दैट हाउ वुड primarily if you look at in the form of say conceptualize it, what enters first comes out first. So ideally what would happen is कि इंडेक्स जीरो के ऊपर आप एलिमेंट पहले ऐड करते हैं, ठीक है। फिर इंडेक्स वन के ऊपर आप ऐड करेंगे, फिर इंडेक्स टू के ऊपर आप ऐड करेंगे, फिर थ्री के ऊपर ऐड करेंगे। तो व्हाट वाज द लास्ट or the first element that was entered, the first element that was entered was at index 0, जीरो। right? So therefore if you want to keep track of that thing, so front index 0 would represent the element that was entered right at the first instance, ठीक है। तो आप I mean that's basically a convention. You can use this convention of having front representing index 0 always, ठीक है। तो अगर आप वो करते हैं तो in that case f would be 0 as soon as you enter the second element, ठीक है। and so in the first instance r और f दोनों 0 हैं। in the second instance r आपका जो है वो 1 हो जाएगा और आपका जो फ्रंट है so this is let's say f, आपका फ्रंट जो है that would always have a value of index 0। so second element के ऊपर आपका फ्रंट 0 पे पॉइंट कर रहा है, लेकिन रेयर जो है वो आपका मूव कर गया टू इंडेक्स 1, ठीक है। so like that is one of the ways of looking at it, ठीक है। though you can do it the other way around also, लेकिन उस सूरत में थोड़ा सा आई मीन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को रिलेट करना विद द इंडेक्स will become a little difficult, ठीक है। तो you will have to say that the higher the index is the older the value is, ठीक है। और इस केस में आप ये कह सकते हैं जो मैंने अभी रिप्रेजेंट किया है, lower the index is latest I mean oldest the value is that has been entered onto this particular queue, though there is no restriction on that। जो आप कोई भी convention use कर सकते हैं, I mean आप use कर सकते हैं, लेकिन generally this is how it is actually done कि आप फ्रंट को लोअर इंडेक्स के ऊपर रखते हैं, ताकि लोअर इंडेक्स का मतलब ये होगा कि आपने ये वैल्यू पहले एंटर की है और हायर इंडेक्स का मतलब ये होगा कि आपने ये वैल्यू बाद में एंटर की है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ क्यू वुड primarily look like, and this is how this would actually
be seen in case of a diagrammatic representation. So if I use this convention, Hamza, आपने जो लिखा है that is also fine. I mean, if you want to do it that way, this is perfectly okay. लेकिन उस सूरत में if you do it the other way around, that is also okay. Generally Q के अंदर आप यानी R रेयर के अंदर ऐड करते जा रहे हैं ना, you are saying कि इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है विद न्यूअर वैल्यूज, ठीक है. सो इस केस के अंदर दोनों जो हैं वो लेट्स से 0 0 आपके पास आ जाएंगे, ठीक है. सॉरी, -1 है. इफ इट इज एम्प्टी, if it is only one element, rear becomes 0 and front becomes 0. अगर आपने दो elements enter किए हैं तो front will have a value of 0 and rear would have a value of 1. और अगर आपने दो किए हैं, front would still be on 1 और rear आपका जो है वो 2 पे चला जाएगा, ठीक है. और इस केस के अंदर फ्रंट आपका 0 है और रेयर आपका जो है वो 3 पे चला जाएगा, ठीक है. सो दैट, सो 3 would mean कि this is the latest value. Higher the value is, that means that this is representing the latest value. So this is like one way. As I told you, you can do the other way around as well. But this is how you can actually look at it. So आपने अगर आपने DQ करना है तो you'll just have to the smallest और the smallest index जो है ना, जो आपके पास होगा उसको आपने DQ इसमें से कर देंगे. जैसे ही मैं इसको 1 को यहाँ से रिमूव करूंगा, सो व्हाट वुड हैपन इन केस ऑफ इफ यू आर एडिंग एलिमेंट्स, व्हाट इज हैपनिंग टू आर, if you are removing elements, what is happening to R and F. So if you are removing element, so in this particular case F और R जो है वो कैसे चेंज हो रहे हैं. if I am removing element, फर्ज करें मैंने अब यहाँ से DQ करना शुरू कर दिया, तो if I am removing one from here, सर 1 थोड़ी रिमूव होगा, ये 4 आपका लेटेस्ट एलिमेंट है तो पहले 4 रिमूव होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा. नहीं, ये Q है, remember this is not stack. अच्छा हाँ, हाँ, ठीक है ठीक है. this is a Q. जी Emma, could you explain this? So सर अगर ये 1 रिमूव हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा फ्रंट आगे जा रहा है. So ये 1 हो जाएगा और जो 4 है बिकॉज वो पीछे आ रहा है तो ये रेयर एग्जैक्टली जो है वो जी बिल्कुल ठीक है. तो फ्रंट विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन. तो अगर इफ आई रिमूव दिस, तो इंडेक्स 0 आपने रिमूव कर दिया तो अब फ्रंट इंडेक्स 1 पे आ जाएगा. जब आप और जब आप इंडेक्स 1 पे जब ये फ्रंट आ जाएगा तो दिस वुड प्राइमरीली रेयर जो है इसका इंडेक्स अब 2 हो जाएगा रादर देन 3, ठीक है. सो बिकॉज अच्छा नहीं, इसको अगर आप सिर्फ फ्रंट के केस में देखें, रेयर को अभी छोड़ दें, अगर आप रिमूव कर रहे हैं तो आपका फ्रंट जो है दैट वुड मूव टू इंडेक्स 1. देन इफ आई एम रिमूविंग 2, आपका फ्रंट जो है दैट वुड मूव टू 2 इन दिस पर्टिकुलर केस. और अगर मैं 3 को भी रिमूव कर देता हूँ तो फ्रंट वुड कम टू 3, ठीक है. और जैसे ही वो 3 पे आता है तो बोथ ऑफ देम विल प्राइमरीली बी एट 3, ठीक है. सो व्हाट इज हैपनिंग if you are dequeuing elements, if you are dequeuing elements, then front is actually increasing, ठीक है. जैसे ही मैं इंडेक्स 0 को निकालूंगा, फ्रंट शुड मूव टू द नेक्स्ट हाईएस्ट इंडेक्स, लोएस्ट इंडेक्स. 0 के बाद, 0 को रिमूव करने के बाद लोएस्ट इंडेक्स जो है वो 1 है, तो फ्रंट वुड मूव टू 1, ठीक है. सो दिस इज व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ डी क्यूइंग. लेकिन इन केस ऑफ एन क्यूइंग, जब आप एन क्यू कर रहे हैं, आई मीन व्हेन यू आर एडिंग एलिमेंट्स टू द क्यू, इन दैट केस आपका जो फ्रंट जो रेयर है, आई मीन इफ यू लुक एट द रेयर पार्ट इन दिस पर्टिकुलर केस, सो ये 0 था, ये फिर 1 हो गया, ठीक है, फिर ये 2 हो गया, ठीक है, फिर ये 3 हो गया. तो व्हेन यू आर एडिंग एलिमेंट्स, रेयर के अंदर इंक्रीज आ रहा है, एंड व्हेन यू आर रिमूविंग एलिमेंट, फ्रंट के अंदर इंक्रीज आ रहा है. तो दोनों डिफरेंट ऑपरेशंस के अंदर एफ और आर की जो वैल्यूज हैं, दे आर बीइंग
इंक्रीजिंग. सो NQ के केस के अंदर, रेयर के अंदर रेयर इज इंक्रीजिंग एंड फ्रंट इज प्राइमरली नॉट चेंजिंग. और अगर आप DQ कर रहे हैं तो उस केस के अंदर आप फ्रंट को जो है वो मूव कर रहे हैं. दो यू कैन रीसेट वैल्यू एट एवरी इंस्टेंस. फॉर एग्जांपल जब मैं DQ कर रहा हूँ एंड इफ आई एम रिमूविंग, लेट्स से if I'm removing, let's say in this particular case, अगर मैं फर्ज करें इस केस में मैं 1 को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है. सो दिस वाज इनिशियली 0, दिस वाज 1, दिस वाज 2 एंड दिस वाज 3, ठीक है. So I can actually, if I'm removing this front, to keep front always at 0 index, मैं इनके indices को जो है I can actually से override those indices, यानी 1 को मैं 0 से represent कर दूं और इस तरह से इसको मैं adjust कर सकता हूं. लेकिन if I don't do that, in that particular case, let's say कि मैं array का एक fixed size मैंने define किया हुआ है, तो जो index 0 है वो index, I mean if I'm using an array to implement this, so if I've defined an array of a fixed size, let's say the size of the array is 5, let's assume in this particular case the size of the array is, let's say 4, तो size of the array तो 4 ही रहेगा ना, ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि मैं उस इंडेक्स को रीसेट करना जो है वो शायद इतना ज़रूरी ना हो, क्योंकि अगर आप वो रीसेट कर देंगे तो दैट वुड मीन दैट द साइज ऑफ द अरे इज आल्सो लाइक चेंजिंग. तो आप उसको करने की बजाय यू कैन कीप द सेम इंडेक्स, ठीक है. सो इफ बस सर एक सवाल था सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया ये इंडेक्स चेंजिंग के वक्त जब हम DQ कर रहे थे. सर हमने जो पहला, जो इससे पहली स्लाइड में जब आपने वो इंडेक्सिंग बताई थी, वो कन्वेंशन बताया, उसमें ये किया था कि हमने R को 0 रखा था और F को बढ़ाए जा रहे थे, ठीक है सर. उस केस में अगर हम लोग फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू निकालते फॉर एग्जांपल के, तो उस केस में F की वैल्यू कम होगी ज्यादा होगी, या R की वैल्यू कम होगी ज्यादा होगी? देखिए उस केस में इससे उलट होगा, लेकिन जो कन्वेंशन इसमें हम यूज़ कर रहे हैं, जो कन्वेंशन हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, वो कन्वेंशन इसमें यही है कि आप इसमें फ्रंट को आप 0 के ऊपर इसको आप अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है. और राइट, फ्रंट को यू आर एक्चुअली पुटिंग एट इंडेक्स 0 और रेयर की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं. सो दैट इज प्राइमरीली द कन्वेंशन व्हिच आई एम एक्चुअली यूजिंग हियर, ठीक है. अगर आप इसकी कन्वेंशन को चेंज कर देते हैं, इफ यू आर डूइंग इट द अदर वे अराउंड, ठीक है, तो उस सूरत में उल्टा हो जाएगा, ठीक है. सर वो तो फिर आप उस केस में होगा ये कि द प्रॉब्लम वुड बी इन दैट पर्टिकुलर केस कि अगर आपने इंडेक्स, अगर फर्ज करें कि मैंने फ्रंट को इंडेक्स 0 के ऊपर मैंने फॉर एग्जांपल रखा हुआ है विच आई एम गोइंग टू रिमूव, तो इंडेक्स 4 के ऊपर, क्योंकि अरे है ना, तो इंडेक्स 4 के ऊपर जाके लेट्स से कि उसको आपको टू मेक इट कंसिस्टेंट आपको स्वैप करना पड़ेगा वैल्यूज को हर वक्त, ठीक है. आप बात समझ रहे हैं. तो आप लेट्स से कि मैं फ्रंट की वैल्यू को 0 नहीं रखता, इंडेक्स 0 के ऊपर मैं फ्रंट की वैल्यू को लेट्स से इफ आई एम नॉट डूइंग दैट, इन दैट केस लेट्स से कि टू मेक इट कंसिस्टेंट मैं ये कहता हूँ कि ये इंडेक्स 3 के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है. फ्रंट इंडेक्स 3 के ऊपर पड़ा हुआ, ठीक है. तो अरे में जब आप ट्रेवर्स करते हैं इन दिस पर्टिकुलर केस, अगर वो लीनियर है, दैट मीन्स के यू कैन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 0 एंड मूव अप टू द फ्रंट. तो अगर मुझे रिमूव करना पड़ेगा किसी एलिमेंट को, तो हर वक्त मुझे अपना एक और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आई हैव टू ऐड समथिंग जिसमें मैं ट्रेवर्स भी करूं उसको हर वक्त, ठीक है. ठीक है सर. तो ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा इशू है अंडरस्टैंडिंग में. सो देयरफॉर कॉन्सेप्चुअली व्हाट यू शुड डू इज कि आप फ्रंट जो है, द फ्रंट एंड उसको आप इंडेक्स 0 ही करें, द अदर कन्वेंशन शुड नॉट बी यूज्ड,
ठीक है, अगर आप उसको यूज करेंगे तो दैट वुड हैव, आई मीन यू, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिलेट इट टू हाउ एन अरे एक्चुअली ऑपरेट्स। ठीक है, सो लेट्स तो से अरे, बेसिकली जी जी, गो अहेड। सर तो सॉरी सर, चलो बेसिकली हमारा ये होगा कि जिस इस कन्वेंशन के मुताबिक जब हम लोग फॉर एग्जांपल फ्रंट को 0 पे ही रखते हैं और रियर को हम बढ़ाते जाते हैं, फ्रंट और रियर दोनों डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस पे पॉइंट कर रहे होंगे। जी जी तो सर जब हम लोग 1 को फॉर एग्जांपल रिमूव करते हैं तो सर फ्रंट की वैल्यू बढ़ के 2 पे लाइक 0 से 1 हो जाएगी जी और जी रियर वैसे का वैसा रहेगा। ये होने वाला जब रिमूव करेंगे हम। जी, अगर आप इस तरीके ठीक से है करते हैं, ठीक है ना, तो ठीक रेयर है ठीक की है ठीक है वैल्यू वही ठीक है। रहेगी। तो इसमें आप देख लें कि अगर अब मैं ठीक है 1 को रिमूव कर देता हूँ तो रेयर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। जी ठीक सर है ना। हाँ, ठीक है सर अगर ये अरे है तो ये जीरो इंडेक्स तो अपनी जगह पे रहेगा ना, जीरो इंडेक्स से आपने वैल्यू को रिमूव कर दिया सिर्फ। लेकिन अरे ठीक है का सर साइज अगर 4 है तो ये मेमोरी लोकेशन अरे के साथ आपके ये लोकेशन तो वहीं पे रहेगी, ये लोकेशन तो आप डिलीट नहीं कर रहे ना, इसको तो आप रिमूव नहीं कर रहे। ठीक है, इट्स वैल्यू रिमूव कर। इट्स नॉट लाइक अ नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट कि जिसमें आपने नोड को रिमूव किया तो आपके नंबर ऑफ नोड्स रिड्यूस हो गए। ठीक है, सो वी जी आर सर assuming इट टू बी एन अरे इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, तो अगर आप अरे के तौर पे इसे ट्रीट करेंगे तो साइज अरे ऑफ साइज 4 विल रिमेन अरे ऑफ साइज 4 इररिस्पेक्टिव के 1 वहां पे था या नहीं था। जी सर ठीक है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। आई एम यस सर क्लियर। Amma, is it clear to you as well? Yes, sir. Okay, so let's just extend this a little bit, and here we have an example जिसमें we are doing the same thing. So you look at so the arrow, the first arrow that you have got here in this particular case, this one is representing, so this is the front and the rear, and इस वक्त आपके पास ये queue जो है वो empty है. So you start from index 0 and you go up to index 4. As soon as you enter the first element, front or rear both of them would have a value of 0. और जैसे ही आप दूसरा एलिमेंट ऐड करते हैं, जैसे ही आप दूसरा एलिमेंट ऐड करेंगे तो द रियर वुड मूव टू 1 और फ्रंट विल रिमेन एट 0। ठीक है, एंड सिमिलरली यू कैन एन क्यू एज मैनी एलिमेंट्स एज यू वांट, जैसे इस केस में हमने 5 एलिमेंट्स को एन क्यू किया। अच्छा, आपने ऐड कर दिया हूं तो सो यहाँ पे दिस इज योर फ्रंट। ठीक है, एंड दिस इज द रियर एंड इन दिस पर्टिकुलर केस, राइट। एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट डी क्यूइंग देम। अब आपने डी क्यू करना शुरू कर दिया, डी क्यू किया तो आपने 1 को रिमूव कर दिया, यहाँ से 1 को रिमूव कर दिया तो इंडेक्स 0 आपके पास खाली हो गया, इंडेक्स 0 के ऊपर कुछ भी नहीं पड़ा होगा। ठीक है, और फिर आपने 2 को भी डी क्यू कर दिया, 3 को भी कर दिया, 4 को भी कर दिया, और जब आपने 2 3 4 को डी क्यू कर दिया तो यू विल सी के ये आपके पास पूरी का पूरा जो अरे पड़ी हुई है यहाँ पे इंडेक्स 0 से 1 तक, दैट इज़ एन एम्प्टी अरे, और आपके पास सिर्फ फोर्थ एलिमेंट के ऊपर आपके पास जो है वो दोनों चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जैसे ही आपके पास एक एलिमेंट जो है, अब यहाँ पे यू कैन सी कि एज सुन एज यू आर एन क्यूइंग, आपके पास जो एन क्यू जब आप कर रहे हैं तो फ्रंट आपका 0 है, रेयर आपका इंक्रीज करता जा रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने डी क्यू करना शुरू कर दिया, जब डी क्यू मैंने करना शुरू कर दिया तो आपका रेयर जो है दैट इज लाइक एट द सेम इंडेक्स, वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन आपका जो रेयर है सॉरी जो रेयर है वो चेंज नहीं हो रहा, फ्रंट आपका जो है दैट इज एक्चुअली स्टार्टेड इंक्रीजिंग इन केस ऑफ द डी क्यू प्रोसेस। अच्छा, जब एक एलिमेंट रह जाएगा, जब एक एलिमेंट रह जाएगा तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम front and rear will become or will be pointing to the same particular cell, and that is the last cell. ठीक है, which is 4 4. So when a front and rear are same, that means that there is only one element that is actually left, and it is not less than 0. So if it is not less than 0 and they are pointing to the same index, that means कि वही आपके पास एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, और उसके बाद you can actually reset it to
1 -1 and that would actually mean अगर आप उसको भी DQ कर देते हैं, the last element उसको भी DQ कर देते हैं तो अच्छा अब let's say अच्छा now let's extend this discussion. फर्ज करें let's assume कि you are here, you are at this position, ठीक है, और अब मैं एक NQ करता हूँ, I mean I am adding an element in this queue now. जब मैं इस में मैं एलिमेंट को जब मैं ऐड करूंगा, राइट और हाँ चलें इसको यहाँ पे हम देख लेते. So this is, so if this is clear we can move on to our next discussion, and that is के so ये उसकी implementation है. Implementation is not that difficult. The code I'll provide you with that with this code ताकि आप इसको देख लें. Priority queue के ऊपर अभी हम आते हैं. Before we move on to the priority queue, पहले हम circular queue की example एक लेते हैं. Circular queues is also another type of queue. इसमें ठीक है, तो इसमें probably this is, oh sorry, okay, so I'll come to this priority queue in a while. So right, so इसमें कोई issue तो नहीं है अभी तक. Is there any problem so far on this? Should be okay मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है. So adding elements, so you keep on adding the elements and then DQ आप DQ कर दें. अच्छा अब let's say के let's consider a scenario जिसमें हाँ यही वाला scenario हम लेते हैं. So let's suppose you are here, आपके पास एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है and that is at index 4, right? और अब हम एक एलिमेंट को पुश करते हैं या NQ करते हैं ऑन टू आर स्टैक. लेट्स से कि मैं 10 को एंटर करता हूं. ये मैं एंटर कहां पे करूंगा इस 10 को? कर भी सकता हूं या नहीं कर सकता? सर ऐड कर तो सकते हैं लेकिन आपका 5 4 पर है तो अगर 10 को करते हो 3 पे ऐड होगा. नहीं, आपने हमेशा रेयर के ऊपर ऐड करना है. तो रेयर तो खाली नहीं है और वहां तो स्पेस ही नहीं है. लेट्स से कि इंडेक्स 4 तक आप ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 5 एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं और अभी आपका रेयर जो है दैट इज एट इंडेक्स 5 इंडेक्स 4. तो इंडेक्स 4 के ऊपर है साइज ऑफ द अरे इज 5. तो आप 3 पे तो ऐड 3 पे कैसे ऐड कर सकते हैं? 3 पे तो ऐड ही नहीं कर सकते क्योंकि रिमेंबर हमने ये कहा था कि जब भी आप NQ करेंगे आप रेयर एंड से करेंगे, ठीक है ना? तो रेयर एंड जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 खाली था, आपने 1 के ऊपर ऐड कर दिया, दिस इज योर रेयर एंड, ठीक है. रिमेंबर ये सीक्वेंशियल फॉर्म में चलेगा ना. सीक्वेंशियल फॉर्म में मतलब ये है कि यू कांट रियली हॉप इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, आपको ट्रेवर्स करके उस इंडेक्स तक जाना पड़ेगा. तो अगर मैं 0 से ट्रेवर्स करूं 1 पे पहुंचूंगा, 1 पे आऊंगा तो यहाँ पे मैं इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है जी. और फिर जब मैंने कोई 3 4 5 3 फर्ज करें मैंने इंसर्ट करना है तो आई एक्चुअली मूव फ्रॉम हेयर टू 2 और यहाँ पे जाके मैं 3 को इंसर्ट कर दूंगा. देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट विच इज़ 4 और यहाँ पे जाके मैं अगले एलिमेंट को इंसर्ट कर दूंगा. एंड देन आई विल गो टू द लास्ट वन और यहाँ पे जाके मैं अगले एलिमेंट को इंसर्ट कर दूंगा. अब अगर मैंने 10 इंसर्ट करना है, मैं यहाँ से अगर चलता हूँ
तो यहाँ पे जाके तो अरे ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद मैं 10 कैसे इंसर्ट कर सकता हूँ? लेट्स से केस केस के अंदर ये वाली एग्जांपल ले लें, मैं यहाँ से ट्रेवर्स करना शुरू करता हूँ, ठीक है, और ये फोर्थ पे जाके, फोर्थ इंडेक्स पे जाके मुझे 5 मिलता है, ठीक है। तो जब मुझे 5 मिलेगा तो मैं 5 के बाद ही उसको एंटर करूंगा ना, 5 से पहले तो नहीं मैं एंटर कर सकता, अदरवाइज इट विल नॉट बी अ क्यू एनी मोर। समझे? जो बाद में आना चाहिए उसका इंडेक्स भी बाद वाली होना चाहिए ना, बड़ा इंडेक्स होना चाहिए। ये बात समझ में आई? Sir, what if we push 5 to 3, index 3, and then we add 10 to 4? हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप उसको पुश करें, यू आर एडिंग ऑपरेशन से, आई मीन आपने ने उसके अंदर यू आर एडिंग न्यू ऑपरेशन, आप साथ साथ उसको पुश करते जा रहे हैं, एंड दैट वुड ऐड टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑफ योर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना। तो आप जैसे ही वो खाली होता है, आप पूरी की पूरी जो है वो अरे को आप पुश कर देते हैं, यानी 2 को आप फ्रंट पे ले आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एन क्यू कर दिए इन तमाम को, जैसे ही मैंने 1 रिमूव किया उसके बाद व्हाट यू आर सेइंग इज़ कि मैं इसके इंडेक्स को रीसेट कर दूं और इस सबको मैं इधर मूव कर दूं, और आखिरी स्पेस जो यहाँ पे खाली हुई थी 0 पे, आई एक्चुअली शिफ्ट दैट टू 4, ठीक है। सो 4 बिकम्स एम्प्टी। सो इन दैट केस अगर तो वो स्मॉलर अरे है, नो प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट। लेकिन अगर वो लेट्स से कि 1000 और 1 मिलियन नंबर्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, तो मुझे सबको इंडेक्स को रीएडजस्ट करना पड़ेगा। आई हैव टू मूव देम वन स्टेप। तो इसको मैं इधर मूव कर दूं, 2 को फिर मैं इधर मूव कर दूं, 3 को इधर मूव कर दूं, 4 को इधर मूव कर दूं, and that would make a space at the end, and then I can add, let's say, 10 right at the last thing, ठीक है। that's possible, लेकिन computationally it will become expensive, isn't it? computationally expensive हो जाएगा ये मामला, ठीक है। is there any other way of looking at this, I mean, or resolving this problem? सर फिर नेक्स्ट एलिमेंट फिर हम 0 पे रख सकते हैं, इंडेक्स 0 पे, मतलब इसको रैप अराउंड करके, रैप अराउंड करके। और अगर आप ये करते हैं देन दिस टाइप ऑफ एन अरे, सो व्हाट वुड दिस मीन? दिस वुड मीन कि लेट्स से कि ये 5 था, यहाँ पे फ्रंट अब मेरे पास 5 के ऊपर है, इंडेक्स 4 के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। एफ जो है फ्रंट जो है वो इंडेक्स 4 के ऊपर पड़ा हुआ है, और रेयर भी जो है वो इंडेक्स 4 के ऊपर पड़ा हुआ है। मैं ये कर सकता हूँ कि मैं वो जो हमने कन्वेंशन पहले अडॉप्ट की थी ना, कि फ्रंट जो है वो लोअर इंडेक्स के ऊपर हो और रेयर जो है वो हायर इंडेक्स के ऊपर हो, आई हैव टू डू अवे विद दैट, ठीक है। और मैं ये कर सकता हूँ कि अब मैं रेयर को उठा के यहाँ से उठा के मैं इसको स्टार्ट ऑफ द क्यू पे, स्टार्ट ऑफ द अरे की तरफ पे पॉइंट कर दूं, तो मैं रेयर को उठा के यहाँ पे रख दूं, ठीक है। सो इफ़ आई ड्रॉ इट अगेन हेयर, यहाँ पे अगर मैं करूँ तो यहाँ पे अगर मेरे पास एक इंडेक्स पड़ा हुआ है, दिस इज़ लाइक इंडेक्स 4 के ऊपर मेरे पास फ्रंट पड़ा हुआ है, ठीक है जी। और दिस इज़ इंडेक्स 0। सो मैं रेयर यहाँ पे ले आऊँ, सो यहाँ से रेयर को मैं रीएडजस्ट करके रेयर यहाँ पे ले आऊँ। अब जो कन्वेंशन है डी क्यू एन क्यू की, जो कन्वेंशन है एडिंग एन एलिमेंट टू टू अ क्यू, आपने हमेशा रेयर एंड के ऊपर करना है और रेयर एंड के ऊपर आपने करना है, और अगर 0 के ऊपर अब रेयर आ जाता है तो देन आई कैन ऐड एन एलिमेंट एट 0, तो मैं 10 को इधर ऐड कर सकता हूँ और 5 इधर ही रहेगा। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि वो जो कन्वेंशन हमने इनिशियली स्टार्ट की थी कि जी इंडेक्स आपका फ्रंट का इंडेक्स आई मीन लोअर इंडेक्स होगा और रेयर का जो इंडेक्स होगा वो हायर इंडेक्स होगा, वो कन्वेंशन अब यहाँ पे वायलेट हो रही है, ठीक है।
and this is becoming so what is happening in this case, you are starting with rear from let's say 0, वो increase होता जा रहा है, जब वो अपनी maximum value पे पहुंचा है आप उसको 0 पे ले आते हैं if 0 is empty, ठीक है. So this becomes circular in nature, so we call this type of a queue a circular queue, ठीक है. So this is a circular queue. तो circular queue के अपने एडवांटेजेस हैं और वो एडवांटेज बहुत क्लियरली आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि दो देयर आर एम्प्टी स्पेसेस हेयर एंड बिकॉज वी हैव सेड कि आपने जो है वो सिक्वेंशियल फॉर्म के अंदर उसको ऐड करना है. इफ़ यू हैव अ बैक कनेक्शन जिसमें आप रेयर लोअर इंडसेस के ऊपर भी आप मूव अगर कर दें तो then that has a sort of a say an implementation which would be circular in form. So rear जो है that would be moving increasing NQing की केस के अंदर, और फिर DQ के केस के अंदर जब आप उसको लास्ट एलिमेंट तक पहुंचते हैं तो then you can actually bring it back to 0. So this is how R would actually change. तो आप उसको 0 के ऊपर इंसर्ट कर दें, ठीक है, लेकिन then R which is rear that will not be at index 4, R would be at index 0 और F जो है वो index 4 के ऊपर होगा. So the front would be at index 4 and R would be at a lower index which is 0, ठीक है. Now if that happens then this type of a queue is not a simple queue, this will be called a circular queue. सर्कुलर क्यू. a circular queue, ठीक है, ठीक है. सो अच्छा, अब इस केस में जैसे सो सर्कुलर क्यू के अंदर आप आई मीन 0 to 1 0 to 4 तक के जो इंडेक्सेस हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो. तो आपने अगर उसको यूज़ करना है सर्कुलर क्यू को तो यू कैन एक्चुअली यूज़ दिस सॉर्ट ऑफ सर्कुलर क्यू रिप्रेजेंटेशन. सो लेट्स से कि अब एक तरीका इसका ये भी हो सकता है ना, देखें वो ये है कि फ़र्ज़ करें मैं 0 के ऊपर इंसर्ट करता हूँ तो 1, 2 and 3 विल रिमेन एम्प्टी. So because 0 to 3 are all empty, so I can always like 0 पे उसको यानी start of the queue पे मैं उसे ले आऊँ और उसके बाद I can actually move towards the front till I find empty memory locations. ऐसा index which is the last entry location. तो इसको मैं लेट्स से सिक्वेंशियल फॉर्म में 0 पे इंसर्ट करने के बजाय 1 पे इंसर्ट करने के बजाय या 3 पे इंसर्ट करने की 2 पे इंसर्ट करने की बजाय मैं उसको 3 पे भी इंसर्ट कर सकता हूँ. एंड बट देन आई विल हैव टू ट्रेवर्स फ्रॉम 0 टू 3. सो 0 पे भी इंसर्ट कर सकता हूँ, 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, वेयर एवर आई वांट टू इंसर्ट दैट, ठीक है. तो जी एक सवाल था, जब आपने 10 r इक्वल्स टू 10 r इक्वल्स टू 0 पे आपने 10 ऐड कर दिया, फिर जब अगर मुझे कोई और एक और एलिमेंट डालना हो तो फिर मैं 10 को कहाँ लेके जाऊंगा? अगर 10 को लेके जाऊंगा तो फिर r कहाँ जाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही एक उसमें प्रॉब्लम है. अच्छा, इसमें क्या करेंगे, फर्ज करें मैंने यहाँ पे 10 ऐड कर दिया, ठीक है, इंडेक्स 0 के ऊपर मैंने ऐड कर दिया. जब मैं NQ करता हूँ, जब मैं ऐड करता हूँ तो R की या रेयर की वैल्यू को क्या होता है, व्हाट वाज द कन्वेंशन? सिंपल क्यू के अंदर R जो है, रिमेंबर सर्कुलर क्यू को भूल जाएं फॉर अ वाइल, आप सिंपल क्यू जो हमने पहले स्टडी की थी, जैसे ही आप ऐड करते हैं एलिमेंट ऑन टू द क्यू, फ्रंट की वैल्यू को मैंने फिक्स किया हुआ था 0 के ऊपर, ठीक है, लेकिन रेयर की वैल्यू को क्या हो रहा था, सर सवाल रिपीट कर सकते हैं? हाँ जी, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ. अच्छा, लेट मी गो टू दैट स्लाइड. अच्छा, यहाँ पे फर्ज करें मैं यहाँ पे था ना, यहाँ पे हम थे, तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भी सेड के फ्रंट वॉज 0, ठीक है, एंड यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है. सो व्हाट इज हैपनिंग टू द रेयर, रेयर यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया,
ठीक है, नाउ लेट्स कम टू दिस डिस्कशन। अगर मैं 10 को 0 पे इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो सॉरी तो ये है मेरे पास, फर्ज करें 10 को मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। अब अगला जो एलिमेंट मैंने इंसर्ट करना है उसमें r की वैल्यू विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, तो 0 की बजाय अब अगला एलिमेंट 0 प्लस 1 1 पे ऐड होगा, तो 0 प्लस 1 इज 1, तो 1 पे ऐड हो जाएगा। उससे अगला एलिमेंट अगर मैं ऐड करना चाहता हूं तो वो 2 पे ऐड हो जाएगा। हर दफा मैं r के अंदर एक ऐड कर रहा हूं ना, दैट वाज द कन्वेंशन। तो जो फंक्शन है वो फंक्शन एज सच, मुझे फंक्शन उस तरह से रीराइट करने की शायद ज़रूरत नहीं है। उसकी जो बेसिक्स हैं वो वही हैं, सिवाय इसके कि मैंने उसमें ये चीज़ ऐड कर दी है कि रेयर कुड एक्चुअली गो बैक टू द स्टार्ट ऑफ द क्यू। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ, लेट्स से 8। अब इसके बाद जब मैं ये करूँगा अगला एलिमेंट मैं ऐड नहीं कर सकूँगा क्योंकि 5 इज़ ऑलरेडी देयर। ठीक है, when 5 is already there तो therefore I can't really add, so अब मेरे पास क्यू जो है वो दोबारा से फिल अप हो गई। ठीक है, so then I can actually DQ 5 को DQ मैं कर देता हूँ। जब मैं 5 को DQ करता हूँ तो इन दिस पर्टिकुलर के सॉरी इसमें 5 पहले आया था और फ्रंट मेरे पास यहाँ पे था। ठीक है ना, रिमेंबर फ्रंट वाज हेयर। तो जब मैं DQ करूंगा तो DQ मुझे फ्रंट को करना है, तो 5 को मैं DQ कर दूंगा। 5 को जब मैंने DQ कर दिया, रिमूव कर दिया, तो फिर फ्रंट किधर मूव कर जाएगा, क्योंकि अगर R फ्लोट 3 पे। हाँ नहीं, व्हाट वाज द लेटेस्ट एलिमेंट दैट वाज एडेड 18, तो इसमें सबसे पहले कौन सा रिमूव होना चाहिए, जो सबसे पहले ऐड हुआ था। 5 के बाद आपने ऐड क्या किया था 10, तो 4 इंडेक्स के बाद जैसे ही आपके पास फ्रंट यानी मैक्सिमम अरे साइज के ऊपर जाके यू विल DQ 5, तो फ्रंट वुड आल्सो गो टू 0। इस वक्त रेयर के कहां पे है, वेयर इज रेयर 3 पे, जी सर, राइट, और फ्रंट आपका किधर चला गया 0 पे। तो 5 के बाद आपने 10 एंटर किया था, तो इसका मतलब 10 रिमूव होना चाहिए, राइट, बिकॉज दैट वाज एंटर्ड फर्स्ट। और फिर आप यहाँ पे द सेम कन्वेंशन वुड स्टार्ट फॉलोइंग। अब मेरे पास रेयर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब 5 यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया, 4 एलिमेंट जो है दैट हैज बीन एलिमिनेटेड, सॉरी 4th इंडेक्स के ऊपर जो भी एलिमेंट पड़ा हुआ था वो दैट हैज बीन एलिमिनेटेड, और फ्रंट मेरे पास जो है वो दोबारा 0 पे आ गया, रेयर जो है वो 3 पे है। नाउ इफ आई वांट टू एंटर, आई विल एंटर एनी एलिमेंट एट 5। अब यहाँ पे लेट्स से कि अगर मैं 20 ऐड करना चाहता हूँ तो मैं 5 की जगह यानी इंडेक्स 4 के ऊपर मैं 20 ऐड कर दूंगा। सो अब द सेम कन्वेंशन वुड एक्चुअली फॉलो। तो अब यहाँ से जैसे ही मैं 10 को रिमूव करूंगा, 10 विल गेट रिमूव्ड। व्हेन 10 विल गेट रिमूव्ड, एज अ रिजल्ट आपका जो फ्रंट है, ठीक है, रिमेंबर फ्रंट इंक्रीज करेगा व्हेन यू आर DQing। तो फ्रंट आपका पहले यहाँ पे अगर था तो दिस वुड स्टार्ट मूविंग हेयर टू 1। ठीक है, और इसी तरह से आप इसको देखेंगे कि अगर फर्ज करें कि ये अब खाली हो गया, आई हैव एंटर्ड 20, तो यू कैन सी कि इट विल नाउ बिकम अ सर्कुलर फॉर्म ऑफ अ थिंग, कि जैसे ही यहाँ से मैं 10 को रिमूव करूंगा, एक और अगर एलिमेंट मैंने यहाँ पे ऐड करना है तो 10 वाली स्पेस खाली है, सो रेयर वुड मूव टू फ्रॉम 4 बैक टू 0। तो अब you can see कि rear and front, rear would primarily follow the front or the other way around, जैसे भी आप इसको देखना चाहें। Now is this clear? Is concept, if there is any question on this, I mean this is important because once you know this concept you can implement that. I mean I think you have enough knowledge to actually implement this thing,
but this working of this circular cube should be very clear. जी बासित. जी सर. Is it clear जी? Yes sir. And you're not like sounding very confident here. सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही थी अभी इसमें जो आपने NQ वाला था ना जो आगे पॉइंट कर था उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी तो उसको थोड़ा सा री एक्सप्लेन कर दें सर अगर दैट्स पॉसिबल. जी बिल्कुल ठीक है. सो लेट्स से कि आपके पास आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर कि वर्स करें दिस इज 5 दैट यू हैव गॉट हेयर और अभी फ्रंट आपका जो है वो यहाँ पे है विच इज F. ठीक है, इज दिस क्लियर? और रेयर वाली बात क्लियर है, उसमें तो कोई इशू नहीं है. जी सर वो क्लियर है. तो यहाँ पे दिस इज R. सो नाउ यू हैव रेयर हेयर, यहाँ पे आ गया. ठीक है, अगला एलिमेंट आपके पास जो ऐड करेंगे वो यहाँ पे आएगा. दैट कुड बी 11. सो योर R मूव्स टू दिस पोजीशन. ठीक है, फिर उसके बाद इट्स 15 लेट्स से. सो अब आपका R जो है वो यहाँ पे मूव कर जाएगा बिकॉज यू आर क्यूइंग इट एंड क्यूइंग इट. उसके बाद लेट्स से कि मैं 18 ऐड करता हूँ. सो R आपका जो है वो यहाँ पे मूव कर जाएगा. ठीक है जी. अच्छा, अब मैंने अब ये आपकी क्यू दोबारा से फिल अप होगी. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी ईमान, इज इट क्लियर? अरूबा, आशिर, इज दिस क्लियर अप टिल नाउ? मुजम्मिल? Yes, sir, it's clear. ओके. सो नाउ लेट्स से कि इफ आई डी क्यू के अंदर क्या करते हैं, आप फ्रंट से एलिमेंट को उठा के बाहर फेंक देते हैं. तो आई एक्चुअली बी रिमूविंग दिस 5 फ्रॉम हेयर. सो व्हेन आई रिमूव दिस 5 फ्रॉम हेयर दिस विल बिकम एम्प्टी. ठीक है, सो इंडेक्स 4 आपका एम्प्टी हो गया. जब इंडेक्स 4 आपका एम्प्टी हो गया तो दैट व्हाट वुड दिस मीन कि दिस का मतलब ये है कि अब आपके पास फ्रंट के ऊपर जो 5 था यू हैव रिमूव्ड दैट 5. ठीक है, 5 के बाद आपने क्या चीज, कौन सा एलिमेंट एंटर किया था? रिमेंबर, आफ्टर 5 you entered 10. 10 was entered, isn't it? ठीक है, तो अगर नेक्स्ट एलिमेंट मैंने रिमूव करना है इस क्यू में से तो वो 10 होना चाहिए. तो इसका मतलब ये है कि नाउ दिस F फ्रंट ऑफ द क्यू शुड मूव टू 10. यहां पे फ्रंट आ जाना चाहिए. ठीक है, तो इफ आई रीराइट दिस अगेन, यहां पे आपके पास 10 है. सो आपका, और यहाँ पे आपके पास 5 था दैट वाज रिमूव्ड इंडेक्स 4 के ऊपर. अब फ्रंट आपका जो है दैट इज एट 10 और रेयर जो है दैट इज एट 80. यहाँ पे आपके पास रेयर होगा. ठीक है, एंड इंडेक्स 4 इज एम्प्टी. अब समझ में आ गई? इज इट क्लियर नाउ? सो दैट मीन्स कि ना सिर्फ R जो है वो आपका 0 पे दोबारा आ जाएगा आफ्टर द साइज ऑफ द अरे और आफ्टर द ट्रावर्सल और द एंट्रीज ऑफ द अरे हैज बीन कंप्लीटेड. ना सिर्फ R 0 पे आ सकता है बल्कि F भी आपका दोबारा से जो है वो 0 पे आ जाएगा व्हेन देयर इज ओनली वन एलिमेंट लेफ्ट. उसके बाद आपने NQ करना शुरू कर दिया. तो जब आपने NQ किया तो उसके बाद जो फर्स्ट एलिमेंट दैट वाज NQ'd वाज 10. सो F जो है अब दोबारा इंडेक्स 0 के ऊपर पहुंच जाएगा.
रिमेंबर जब एक एलिमेंट रह गया था तो f was at index 4, ठीक है, क्योंकि उसी को आपने रिमूव करना है, इंडेक्स 4 के ऊपर एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है, उसी को आपने रिमूव करना है, दैट वाज शोन इन दिस पिक्चर हेयर। लेकिन फिर आपने ऐड करना शुरू कर दिए एलिमेंट्स, जब आपने ऐड करना शुरू कर दिए तो f तो वहीं पे रहा है, जब आप ऐड कर रहे हैं f तो चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ r चेंज हो रहा है। तो रेयर के अंदर इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा जब आपने वो सारी चीज़ें फिल कर दी। अब आपने डी क्यू करना है, डी क्यू करने के लिए फ्रंट और 5 को डी क्यू किया तो 4 इंडेक्स खाली हो गया, f will now move to index 0, so f will come here, then 10 will get removed, or when 10 will get removed, as a result f will start moving towards the higher indices, ठीक है। सो जब मैं फर्ज करें 10 को भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ इंडेक्स 0 के ऊपर, तो f will move to the next block which is at index 1 element 11, अब 11 रिमूव हो जाए, ठीक है। सो दिस विल बी f, ठीक। नाउ इज दिस मेकिंग सेंस? जी वासित, इज इट क्लियर नाउ? और Yes, it's better now. अब थोड़ा मजा। हाँ जी, एनीवन एल्स? So wouldn't it be easier to implement all of this using linked lists? जी, that is also a possibility, बिल्कुल you can do that, ठीक है। it would be much easier to actually implement it using a linked list। अच्छा, एक और तरीका भी हो सकता है, और वो तरीका ये है कि आप हाँ, पर arrays or linked list, there are other ways of implementing it. We'll be discussing, probably not in the case of a circular queue, but maybe in case of priority queue there are other ways of implementing this. Lekin this is how you can use arrays to actually implement this particular queue, which is called सर्कल। सो इसका फ़ायदा सिर्फ ये है कि आपकी क्यू जो है, यू विल नॉट हैव एम्प्टी स्पेसेस इन इनसाइड योर क्यू, ठीक है। आप उसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई इंडेक्स खाली पड़ा हुआ है या जिस किसी इंडेक्स के ऊपर कोई एलिमेंट जो है, क्योंकि आप कभी हमेशा ऐसा नहीं होगा आप पहले सारे एन क्यू करेंगे और फिर डी क्यू करना शुरू कर देंगे। आप बेसिकली शायद 2 एलिमेंट आपने एन क्यू किए और एक एलिमेंट आपने डी क्यू कर दिया, और फिर इस तरीके से वो चलेगा, and therefore you might have these empty spaces there. So if you are using an array to implement this, then there would be an issue of these having these empty spaces and losing out on memory. So if you want to avoid this, you can actually have this circular implementation of the queues, ठीक। जी, so if it is clear, then we can like go to the next discussion. I mean, obviously we don't have enough time to cover that, lekin but I can give you an idea of the other types also, but if it is clear, ठीक। so prior सर उससे पहले before you continue, can I make a request? जी please सर प्लीज कैन यू, सर हमने जो लास्ट लेक्चर में कहा था कि आप पुराने जो लेक्चर थे उसमें से हमने भी नोट्स के अपलोड नहीं किए और उसके लेक्चर भी अपलोड नहीं किया, कैन यू सर डू दैट प्लीज? जी वो मैं अभी कर दूँगी, बिकॉज आई वाज एक्चुअली प्रिपेयरिंग दैट, आई वाज ट्रैवलिंग, तो इस वजह से आई कुडंट एक्चुअली प्रिपेयर द स्लाइड्स प्रॉपर्ली, और उनको मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर सका था, और
ये स्टैक्स और क्यूज वाला मेरा ख्याल रहता है ना? हाँ सर, लिंक लिस्ट तक तो है, लिंक लिस्ट हाँ, तक तो है, उसके आगे का नहीं। हाँ बिल्कुल, वो आज इंशाल्लाह हो जाएगा। ये स्लाइड्स आर देयर ना। So what I ठीक है do is के I'll either upload this video or I'll make another neat video of this and upload that a smaller version of the same video, ताकि वो आप आसानी से उसको फॉलो कर सकें। Just to so it will be done स्लाइड्स तो मैं अभी अपलोड कर देता हूँ। वीडियो उसकी जो है दैट वुड प्राइमरली बी डन probably towards the end of today. ठीक है सर। इसमें जो लैब है दैट वुड बी ऑन लिंक लिस्ट्स अगेन, डबल यस लिस्ट्स और उसके ऊपर एंड सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। सर एक और सवाल था। जी जी सर जो हमारा फाइनल होने वाला है, वो फाइनल सर जिस जो डेट जैम्बिल पे लिखी है उसी पे होने वाला है, या फिर आप डेट चेंज करेंगे? मुझे अब याद नहीं है डेट क्या थी सर 18 या 22 में से एक डेट थी। हाँ, अभी तो वही डेट हम मोस्ट प्रॉब्ली शायद रखें। ठीक ठीक है। है सर, ठीक। तो just to re-emphasize, this is how you visualize a circular queue. So it's primarily in the form of a circle. So इसका मतलब ये है कि rear और front जो है ना, they are actually moving in cycles. So this is another visualization of that. And here is the example that you can actually follow in order to understand कि ये किस तरीके से आ रहा है। So you can see here कि आपका जो है यहाँ पे आपका rear जो है that has been set to 0, और यहाँ पे rear आपका कम हो गया और front आपका जो है that is at a higher index। ठीक है, and this is how then you will start entering the values, right? So I'll upload। इसमें एक चीज़ जो है वो रह गई है क्यूज़ के अंदर, वो डबल एंडेड क्यूज़ था जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट की थी। आई रियलाइज्ड के बिफोर सर्कुलर क्यूज़ को समझने से पहले या देखने से पहले ये डबल एंडेड क्यूज़ को समझना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए देयर वाज सम डिफ़िकल्टी वाज बीइंग ऑब्जर्व्ड लास्ट टाइम। तो we'll discuss this double-ended queues probably next time, और उसके बाद there is another data structure that we'll be discussing, that is trees। तो उसको हम देखेंगे, and then there are other few topics that are left, we'll cover those topics। ठीक है जी। तो so anything so far on what we have discussed so today? अगर कोई question है तो just ask me। अगर कोई issue है तो